सबसे पहले बात करेंगे गजा और मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए तारीख साज दिन। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने अमन माहिदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल लगे। अमीर ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। मुआहिदे में गजा की तामीर नौ, सेहूनी फौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और हमास को गैर मुसल्लह करने समेत अहम नुकात शामिल हैं। मिस्र के शहर शर्म शेख में तारीखी तकरीब। गजा अमन मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मुआहिदे पर दस्तखत किए। मिस्र, तुर्की और कतर ने भी तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा अमन मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। गजा की तामीर सब मिलकर करेंगे। अमन माहिदे से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन आएगा। शर्म शेख में माहिदे के बाद सदर ट्रंप का खिताब। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इज़हार तशक्कुर कहा। अमन माहिदे की वजह से गजा में खून रेजी रुकी। यरगमालियों की वापसी हो चुकी। गजा में इमदादी सामान पहुँच रहा है। सब कहते थे ये मुमकिन नहीं, लेकिन ये हो गया। Everybody said it was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. I want to congratulate everybody. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. A new and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world. They're elated at the arrival of the hostages and excited to begin this new chapter for the entire region, and it's going to be that, and they are going to be great partners, and I hope everybody's going to join the Abraham Accord. I like to say the Avraham. I love Avraham. But somehow it doesn't sound as good when I say it as it does when some of my other friends say it who are from the region. वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। उन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप को एक बार फिर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कहा, वो इस इनाम के सबसे मौजू और शानदार उम्मीदवार हैं। तारीख आपका नाम सुनहरी हरूफ में लिखेगी। खुदा आपको सलामत रखे और लंबी उम्र दे, ताकि आप आइंदा भी इसी तरह खिदमत करते रहें। Today is one of the greatest days in contemporary history. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who has relentlessly and untiringly worked day in and day out to make this world a place to live with peace and prosperity. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, and today achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your visionary leadership. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. History will remember in golden words. God bless you. God give you long life to serve like this for all time to come. गजा अमन माहिदे पर दस्तखत की तकरीब में अमेरिकी सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुर्बतें और गर्मजोशियां। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल को भी ना भूले, उन्हें फेवरेट करार दिया। History will remember in golden words.
Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. गजा में अमन मुआहदे की तकरीब, ट्रंप और शहबाज मजीद करीब। President Trump, who is genuinely a man of peace. शहबाज शरीफ ने मैन ऑफ पीस करार दिया तो सदर ट्रंप ने भी दिल का हाल कह डाला। Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. दुनिया भर की नजरें जिस तकरीब पर थीं, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल को फेवरेट करार देते रहे। My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the prime minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? दस्तखत की तकरीब से पहले भी ट्रंप कई आलमी रहनुमाओं से मिले, मगर शहबाज शरीफ आए तो अमरीकी सदर ने बाहें खोलकर इस्तकबाल किया। गरम जोश मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर ट्रंप और वजीर आजम की कुर्बतें पता देती हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात अपने बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा अमन सरबराही इजलास में सदर ट्रंप की खूब तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा था कि सदर ट्रंप की मिसाली बसीरत अफरोज क़यादत को सलाम पेश करना चाहता हूँ। इस वक्त दुनिया को आप जैसे इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है। गजा में जंग बंदी माहिदे के बाद अमन की जानिब पहला कदम। इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का तारीख साज लम्हा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को छोड़ दिया। इसराइल की जानिब से भी 1986 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उम्र कैद काटने वाले 250 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को रिहाई मिल गई। लोग अपने प्यारों से मिले तो जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा खित्ते में अमन और फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेशखैमा करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि क़याम अमन के बाद एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह गुफ्तगू आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में की। गजा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बहरीन के फरमारवाज शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी शरीक थे। फ़लस्तीनी सदर ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के अमीर समेत इंडोनेशिया, आज़रबाईजान के सदूर, उर्दन के फरमारवा, इटली, स्पेन, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। पाक अफगान कशीदगी पर दो बड़ी आलमी ताकतों चीन और रूस का इजहार तशवीश। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। बीजिंग दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाहां है। उम्मीद है दोनों ममालिक वसीतर मुफादात के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सुर्गे लारोफ ने काबुल और इस्लामाबाद से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। कहा, दोनों मुल्कों को चाहिए मामलात बातचीत के जरिए हल करें। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़रा ने शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में अर्ज़ पाक के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश किया। कहा, पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान सरजमीन से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल करार दी। कहा, पाक फौज हर जारियत और साजिश का जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला मुंतखब। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ईवान बन गए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट और ईवान से वॉकआउट किया। शाहबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। इस्तीफे की मंजूरी जरूरी थी या नहीं? आईनी बहस के दौरान ही खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली। सुहेल आफरीदी नए कायदे अवान मुंतखब हो गए, 90 वोट लिए। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा, वो अब भी अली अमीन गंडापुर को ही वजीर आला समझते हैं। आप अगर समझे ना समझे, मैं अब भी समझता हूँ ही सीम ऑफ दिस प्रोविंस। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया, इंतखाबी अमल का बाइकआउट और असेंबली से वॉकआउट किया। अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान असेंबली ने सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। गले लगाने के साथ रिवायती पश्तून पगड़ी भी पहनाई। वजीर आला का इंतखाब तो हो गया, अब देखना होगा सुहेल आफरीदी से हल्फ कौन लेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फान मूसा जई के साथ शाहबुर रहमान,
समा, पेशावर। मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला मुंतखब होने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पहला खिताब। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा, बानी को जेल से मुंतकिल करने पर पूरा मुल्क जाम करने की धमकी दे दी। कहा, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मेरे नाम के साथ जरदारी है, भुट्टो ना ही शरीफ, सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, कबायली होने पर फख्र है। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। जहाँ पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वहाँ लोकल अवाम, वहाँ के माहिदीन, वहाँ के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। उनसे आपने पूछना होगा कि इसको किस तरह खत्म किया जाए। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियाँ हैं, ना बंगले हैं। शायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं पख्तून हूँ, और मैं फख्र करता हूँ कि मैं कबायली हूँ। गवर्नर की मंजूरी के बगैर नया वज़ीर आला मुंतखब तो करवा लिया, अब हलफ किससे उठवाएं? तरीके साहब पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। हलफ बर्दारी के लिए बंदा नामजद करने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने नमाज दिए। गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर से हलफ की समरी मौसूल होने की तस्दीक और उस पर जवाब आज तलब कर लिया। नौ मुंतखब वजीर आला सोहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हलफ बर्दारी के लिए बंदा नामजद करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्पीकर की गवर्नर को हलफ के लिए भिजवाई गई समरी का कोई तहरीरी सबूत मौजूद है? क्या गवर्नर के जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए? आइन का आर्टिकल 255(2) तब ही नाफिजुल अमल होगा जब कोई हलफ लेने से इनकार करे। गवर्नर की राय बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। इससे पहले मखसूस नशिस्तों के हलफ नामजदगी मामले पर भी मुझ पर केस हुआ है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल सुबह तक का वक्त दिया है कि वो अपने मौरूज़ात पेश करें। अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर चीफ जस्टिस साहब का ये कानूनी और आईनी फर्ज होगा कि वो किसी और शख्स को कहें कि वो सोहेल खान आफरीदी से हल्फ ले, ताकि वो बतौर वजीर आला काम शुरू कर दे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हलफ समरी मौसूल होने की तस्दीक और इस पर जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन ज़कौल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात में अदलिया से रुजू का फैसला किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुस्तरद करती हैं। तर्जुमान JUI के मुताबिक शुरा ने इत्तेफाक किया कि इस मामले पर आइनी और कानूनी पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। उम्मीद है पेशावर हाईकोर्ट किसी मुतनाज़िब पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। मुलाकात करने वाले लीगी वफ़द में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। सियासी अमल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की रूलिंग। कहा, अपोजिशन का कागजात नामजदगी जमा करवाना इसका वाज़ेह सबूत है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी अमल को दुरुस्त समझती हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इंतखाबी अमल के बाइकआउट की कोई और वजह भी हो सकती है। इस इलेक्शन प्रोसेस में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि 4 नॉमिनेशन पेपर्स कल जमा कराए गए। इसका मतलब यह हुआ कि तमाम सियासी जमातें इस खैबर पख्तूनख्वा की ये समझती थीं और समझती हैं कि जो काम हुआ है वो बिल्कुल आइन और कानून के तहत हुआ है। अपोजिशन की जमातों ने जो वॉकआउट किया है, हो सकता है कोई और मजबूरी हो, कोई और वजह भी उसकी हो सकती है, मगर इस प्रोसेस में वो पूरा हमारा हिस्सा रहे। फर्क दस्तखत में नहीं, नीयत में है। इस्तीफा दिया हुआ है, गवर्नर के पास जाकर दस्तखत का फर्क बता दूंगा।
अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। असेंबली से खिताब में कहा, जिस दिन बानी पीटीआई ने हुक्म दिया इस्तीफा दे दिया। ताला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है कि हमें लीडर का हुक्म बड़ा है। रिजाइन मैंने दिया हुआ है, मैंने माना हुआ है कि रिजाइन मैंने दिया हुआ है, उसके बाद मुझे बुला रहा है। सर वो कह रहे हैं कि दस्तखत में कोई फर्क है क्या? फर्क है, फर्क नहीं है, फर्क नीयत पे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का जाली इलेक्शन हुआ। एक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, दूसरा मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी ने भड़के मारी, उनकी भड़कों पर हंसी आती है। एक जाली जो है इलेक्शन हुआ है, क्योंकि एक वज़ीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ। तो मुझे हंसी आ गई कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी के हालात हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको मौसर तरीन जवाब दिया जा रहा है पाक फौज की तरफ से, और इस वज़ीर आला के मुंह से एक लफ्ज़ जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो। मुरीदके में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का मामला। पुलिस ने क़यादत समेत कारकुनान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना मुरीदके सिटी में TLP कायदीन और कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और डकैती समेत 32 दफ़ा शामिल की गई। पुलिस ने मुरीदके में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। FIR में अमीर TLP, साद रिजवी, अंस रिजवी समेत अलामा फारूक अल हसन, मौलाना सज्जाद सैफी, मुफ्ती वज़ीर अली समेत कारकुनों को नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मजहबी जमात के एहतजाज के खात्मे के बाद मुख्तलिफ शहरों में सड़कें खुल गईं, ट्रैफिक बहाल, मामलात ज़िंदगी मामूल पर आने लगे। डस्का में लाहौर मोटरवे, राजूके और देदोवाली इंटरचेंज समेत ऊठियां, गुजरावाला तक सियालकोट रोड और दीगर तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। फतेहजंग में शाहपुर डैम के मकाम पर फतेहजंग पिंडी रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, जबकि मोटरवे सीपैक इंटरचेंज पर ट्रैफिक भी रवा दवा है। टेक्सला में भी GT रोड मरगला के मकाम पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक बहाल है। मोटरवे ब्राह्मा इंटरचेंज और टेक्सला वाहकैंड के रास्ते भी खुले हैं। फारूकाबाद में सरगोदा रोड भी ट्रैफिक के लिए खुली है। जुड़वा शहरों को मिलाने वाली GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। कराची में एहतजाज, पुलिस का सख्त एक्शन, 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक शहर में अब किसी भी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाल इंजार का इश्तियाल अंगेजी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आवाम अफरा तफरी से मुतल्लिक अफवाहों पर कान न धरें। शहर की मॉनिटरिंग पर मामूर स्टाफ और एंटी राइट्स दस्तों को अलर्ट रखा जाए। किसी मकाम पर हुजूम या अमन मुखालिफ सरगर्मी पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी आगाह किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना और सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब करार दे दिया। कहा, 2 साल गजा में जुल्म हुआ, खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद न आया। जब जंग बंदी हुई तो एहतजाज शुरू हो गया। वक्त आ गया कि मुआशरे को यरगमाल बनाने और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाने का सिलसिला बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने तरमीम से पहले वाले जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने फुल कोर्ट के हक में दलाइल देते हुए कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 24 है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि ऐसे में 16 रुकनी फुल कोर्ट कैसे बनाएं? आप ये क्यों कहते हैं कि 26वीं तरमीम से पहले वाले जज ही बैठे, ऐसे में फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? आबिद जुबैरी ने कहा कि सीनियर तरीन जज बेंच सरबराह होंगे, हमें चीफ जस्टिस पर भी एतराज नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि याहिया अफरीदी तो इस तरमीम के नतीजे में ही चीफ जस्टिस बने हैं। सीनियर तरीन जज भी हमारे मोहतरम, मगर वो इस तरमीम से मुतासरा हैं। आईन और कानून में दिखाएं कि फुल कोर्ट की तारीफ कहाँ है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इस सवाल पर कि हम किस दायरा इख्तियार में फुल कोर्ट का ऑर्डर जारी करें, आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि 26वीं तरमीम भी इख्तियार इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। आईनी बेंच के अलावा कोई 184(3) की दरखास्त पर ऑर्डर नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जो आप 16 जजेस वाली दलील दे रहे हैं, इसमें अपील का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के सब जज सुन ले तो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप सिर्फ फुल कोर्ट की इस्तदा करें, ये नहीं कह सकते कि फलां फलां जजेस पर मबनी फुल कोर्ट हो। 26वीं तरमीम से कबल वाला फुल कोर्ट चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजेस को निकालना होगा। मैं इस पर मुत्तफिक हूँ, फुल कोर्ट इज्तिमाई दानिश से फैसला करे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने आबिद जुबैरी से कहा कि आप पसंद करें या न करें, आर्टिकल 191A इस वक्त आइन का हिस्सा है और इस आर्टिकल के तहत आईनी मुकदमात पर चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। जिन्हें जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, उन्हें कैसे शामिल करें? अगली समाअत पर इस सवाल का भी जवाब दें। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर करवा लिया। एजेंडा पूरा होने पर कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। शिकवार मंजूरी दी गई। ओपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ऐवान में पेश किया। ओपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर एजेंडा मुअत्तल करने का मुतालबा किया। कापियां हवा में उछाल दी। शुरू में भी कहा था कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम सारे रिक्वेस्ट करेंगे इसको आप कल तक पेंडिंग करें और आज बैठकर उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, मजहबी जमात से मामलात अफाम तफहीम से हल करेंगे। उनको चाहिए कि बैठें हमारे साथ और अफाम तफहीम से तमाम मामलात हो सकते हैं। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने ओपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद कानून मकामी हुकूमत पंजाब 2025 की मंजूरी दे दी। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर।